Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So today's lab or the lab number 12 is on common collector amplifier, and आप लोगों ने common emitter amplifier is the one which we have done previously in the last lab, lab number 11, and it is kind of the extension of the previous lab because only difference is that कि आपकी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में देयर इज़ अ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि इट्स अ काइंड ऑफ voltage buffer, right? So whatever voltage comes in goes out, right? So then what's the benefit of having a common emitter amplifier, right? Or emitter follower, right? It is the kind of scenario that when we connect it to a source which have a large resistance and we want to connect it to a load which is of having something relatively low resistance, so wahan pe it's a kind of the amplifier which takes in the less current and provides the high current, right? Or takes in the low current, provide the high current, right? So it's a kind of amplifier which deals with the current amplification, right? Not the voltage amplification. Voltages remain constant, right? So if a low current source or the source which have a large resistance is connected to a low resistance load, or we can, in other words, we can say a load which needs a higher current, right? So in that case, instead of using a voltage buffer in voltage amplifier, we use a current amplifier or a voltage buffer, right? So different scenarios ki basis pe we actually modify our amplifiers or our transistors, right? So this is the kind of transistor which we use in this specific scenario, right? Acha. So our basic biasing circuit, as I discussed, there are multiple ways of biasing, and accordingly आपकी biasing के साथ साथ आपकी equations change होती हैं. For example, यहाँ पे आपकी equations है voltage divider bias की, ठीक है? What would be the input resistance? आपकी base voltage क्या बनेगी, right? The voltage at the base would be actually you can find it with the help of the voltage divider formula, R2 divided by R1 plus R2 times RC, right? इसी तरह VE is equal to बेस वोल्टेज माइनस VBE, राइट? तो आपको वी ई वोल्टेज आप यू कैन फाइंड इट आउट, राइट? इसी तरह व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ द करंट, हाउ यू कैन फाइंड VC, हाउ यू कैन फाइंड VE, राइट? सो ये सारे फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू योर बायस दीज आर मॉडिफाइड, राइट? What if you are using a base bias, emitter bias, collector feedback bias, accordingly आपके formulas में थोड़ी बहुत changes आती है. Now I told you in the previous lab कि biasing is something which is linked with your basic quiescent point setting, right? It is not linked with amplification. It is actually stabilizing your transistor circuit and fixing your quiescent point ताकि आप जो भी signal उस पे देते हैं overlap करते हैं उस DC level पे, it is accordingly amplified, or इस scenario में it would be of the same amplitude, not क्योंकि it's a emitter follower, right? So biasing is actually kind of the energy you are giving to your DC circuit, your transistor, and it actually uses that energy to either amplify a current or amplify a voltage and give it accordingly to your load, right? So common collector amplifier DC biasing voltage is something जो आपने खुद यहाँ पर perform करनी है. Previous lab में I have told you how you are going to calculate the biasing voltages and how you are going to compare them with your previous circuit, right? यानी कि जो आपका सर्किट है फार्मूला के थ्रू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है? फॉर एग्जांपल VC का फार्मूला ये है, दिस इज द फार्मूला फॉर योर VB VE, ठीक है? अकॉर्डिंगली आप आई एमिटर करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला, आई बेस फाइंड आउट करने का फार्मूला, एंड इन सारे फार्मूला से आप अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये सारा है थ्योरेटिकल साइड. जब आप इसको एक्चुअल में कंपेयर करेंगे विद योर एक्चुअल सर्किट, आपने सिर्फ दिस एरिया ऑफ द सर्किट को प्लॉट करना है. लेट मी शो यू. आपने प्रीवियस लैब में इसको कवर किया है. आपने इतने पोर्शन को आपने इसमें से लेना है, ठीक है? दिस इज द पोर्शन जिसके लिए आपने बायसिंग वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है, और आपने उसमें मल्टीमीटर ऐड करने हैं उन लोकेशंस पे. फॉर एग्जांपल आपने
कलेक्टर की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, सो मल्टीमीटर वुड बी बिटवीन योर कलेक्टर एंड ग्राउंड। एंड इसी तरह VE फाइंड करने के लिए योर मल्टीमीटर वुड बी योर एमिटर एंड ग्राउंड। इसी तरह बेस वोल्टेज फाइंड आउट एंड कंपेयर करने के लिए योर मल्टीमीटर ऑफ योर मल्टीसिम राइट वुड बी बिटवीन योर बेस एंड ग्राउंड। ठीक है, ये प्रोसीजर इज ऑल एग्जैक्टली द सेम जो आपने प्रीवियसली कॉमन एमिटर में प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, ये बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को आई एम नॉट रिपीटिंग। प्लस ये जो कैलकुलेशंस हैं इस लैब के लिए, दीज वुड बी परफॉर्म्ड बाय यू। ठीक है, आई विल बी ग्रेडिंग देम, इसके मार्क्स होंगे। और प्रीवियस में मैंने कम्प्लीटली एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी करके पर बताई है। ठीक है, लैब नंबर 11 में। अच्छा, कैलकुलेटेड वुड बी द वन जो आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे। अकॉर्डिंगली मेजर्ड वुड बी द वन जो आप अपने मल्टीमीटर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। सो आपने इन सब को, आई एमिटर समथिंग जो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला में if you want to use the one which is measured, then you are going to connect a multimeter in between your emitter एंड ग्राउंड। ठीक है, वहाँ से जो आपको करंट मिलेगा उसको यूज़ करते हुए यू विल measure your RE dash। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड वुड बी द वन विद द IE which is actually found out with the help of this formula right। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये आपने सारे इसमें इस प्रोसीजर में आपने यू आर गोइंग टू डू इट बाय योर सेल्फ बिकॉज प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू राइट। अच्छा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसमें व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि योर common collector amplifier right, your collector is common, it means your collector is grounded। ठीक है, you are not connecting any resistor in this path। ठीक है, two resistors are connected to give your base voltage and आप signal अपना देंगे at your base and you are taking out your output or the output signal जो output voltage है वो आप receive करेंगे from your emitter। ठीक है, so this is your input arm, emitter is your output arm, nothing is linked with your collector, so this is the kind of common arm। Yep, you can say it's the kind of grounded arm। ठीक है, ओके। अच्छा, जब आप अपने सिग्नल सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए, एंड आई टोल्ड यू प्रीवियसली यू आर गोइंग टू कनेक्ट दीज कलेक्टर्स फॉर bypassing the DC level which can come from any other circuit which is linked previously। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका क्यूसन पॉइंट डिस्टर्ब होगा which you have stabilized, and उसको नॉन डिस्टर्बिंग रखने के लिए वी कनेक्ट अ कलेक्टर हेयर एंड अ कलेक्टर हेयर। एंड प्रीवियसली हमने यहाँ पर भी बाईपास कलेक्टर एड अप किया था, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस दिस RE रजिस्टर राइट। अच्छा, जब आप इसको H पैरामीटर्स वर्जन में शिफ्ट करेंगे, यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्म्स ऑफ योर ट्रांजिस्टर, वन इज़ योर T आर्म एंड अदर वन इज़ योर H आर्म राइट। अच्छा, दिस इज द सिनेरियो, आपका ट्रांजिस्टर आप नोट करें, सो दिस इज योर करंट सोर्स विच इज़ मोस्टली जो आपका कलेक्टर है उसको आप वहाँ पर एक रिप्लेसमेंट देते हैं करंट सोर्स की, एंड यू कैन सी दैट से दैट IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB और अल्फा टाइम्स IE, एंड यहाँ पे आपका बेस है विच इज़ जिस पे आप अपना सिग्नल दे रहे हैं, देन देयर इज़ एन RE विच इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर ट्रांजिस्टर राइट, एंड ये आपका पॉइंट है ऑफ योर एमिटर। ठीक है, सो कलेक्टर, base and emitter के साथ you are connecting RE, and if you are connecting a load resistor, so ये आपके दोनों parallel हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, so V out is IE into RE without the consideration कि आपने load connect किया है, तो voltage gain के लिए actually we will be using this formula। ठीक है, V in is IE RE dash plus RE। ठीक है, means VI is the current flowing through this arm and the resistances जो उस आर्म में कनेक्टेड हैं उन दोनों का आप सम अप करेंगे, सो करंट इनटू द रेजिस्टेंसेस इज योर इनपुट वोल्टेज राइट। सो gain is what, output by divided by input, so IE is cancelled out and everything left is RE divided by RE dash plus RE, and you know RE dash is very few ohms, so approximately आपका gain closer to 1 होगा। You will be using this formula to find out your calculated gain। ठीक है, and I am going to show you how you are going to find out your observe या measured gain। ठीक है, so let me और finally आपने इन दोनों को compare करना है right, so let me give you a view।
ओके, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ जो हैं वो आपका थोड़ा सा वी विल बी चेकिंग देम कंसिस्टेंटली। ठीक है, दो आपको कैपेसिटर्स चाहिए एंड अ ट्रांजिस्टर, प्लस योर सिग्नल पावर सोर्सेज, राइट। पावर सोर्सेज, इसमें से आप लेंगे VCC voltage and let's take multiple grounds because it's something we consistently use, right? Around 4 to 5. ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, आई गेस दैट्स इनफ। ठीक है, एक दो तीन, हमें तीन ही चाहिए, R1 एंड R2। R1 शुड बी फॉर दिस स्पेसिफाइड लैब एक्सपेरिमेंट, हमारी R1 की वैल्यू इज, वेयर इज द लैब सर्किट, okay, this is R1 is 96 and R2 is 20, so let's take R1. Right, so R1 and R2 and R3 is the one which is actually RE, and RE is 500 ohms, so I'm going to change it to 500, and let's change the label for our E's. अच्छा, ये है आपका, सो फार दिस इज़ योर बायसिंग सर्किट, जिसके लिए आपने बीच में जस्ट मल्टीमीटर्स अटैच करने हैं। दिस इज़ योर बायसिंग सर्किट। ठीक है, जब आप AC सिग्नल इनपुट करते हैं, सो फॉर पुटिंग इन एन AC सिग्नल वी आर गोइंग टू यूज़ अ फंक्शन जनरेटर and a 4-channel oscilloscope to observe it, right? So we will be connecting it with the help of a capacitor, right? अच्छा, around kilohertz में, yes, definitely आपकी frequency should be in kilohertz. Let's take it 5 kilohertz and an amplitude of 10 millivolts, right? Okay, I will be changing my voltage to 12, एंड ये आपका सर्किट सिनेरियो है, और इसमें थोड़ी सी ये है कि आपने आउटपुट जो कनेक्ट करना है। अच्छा, योर लोड रेजिस्टेंस RL इज गोइंग टू बी 120, बिकॉज आपने गेन इसके साथ ही फाइंड आउट करना है। सो लेट्स टेक 120, राइट। ये आपका RL है, इसका लेबल भी चेंज कर देते हैं, RL लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, आपका सिग्नल है अराउंड 10 मिली वोल्ट्स। ठीक है, तो आप, क्योंकि एम्पलीफाई नहीं हो रहा यहाँ पर, तो आप इसको अराउंड 10 मिली वोल्ट्स लेके जाएंगे, तो आपको अपना सिग्नल, बिकॉज इट्स अ वोल्टेज बफर, ठीक है, जो इनपुट पे वोल्टेज होगी वही आपके आउटपुट पे होगी, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि अराउंड 10 मिली वोल्ट्स पे आपका सिग्नल ऑब्जर्व होना शुरू हो गया है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने इसको पिकअप योर वैल्यू ऑफ योर पीक। ठीक है, दिस इज़ 14 मिली वोल्ट्स। ठीक है, 14, रफली 14 मिली वोल्ट्स। इस फार्मूला में
जब आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ए गेन इज द वन जो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, आर ई पैरेलल विद आर एल and this entire formula, ठीक है, that would be your calculated voltage gain, and you will compare it with your this voltage gain, which would be V out divided by V in, and you know V in is 5 millivolts and V out is going to be this value which is roughly 14, ठीक है, so 14 millivolts, एंड यहाँ से आप अपना गेन फाइंड आउट करेंगे जो भी आपकी वैल्यू बनती है, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस, राइट, वो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। Okay, let's make a second part for that because or let's continue. Okay, आपके input and output impedances के लिए circuit is the same. This is your input voltage which is RE parallel with RE internal and plus RE, ठीक है, times your current. This is your input voltage. V output is RE into this IE. अच्छा, इसको यूज़ करते हुए यू कैन रफली एस्टिमेट कि आपका जो इनपुट साइड का बेस रेजिस्टेंस है आर इन बेस, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस डिवाइड बाय आई बी, एंड आई बी इज रफली इक्वलेंट टू or you can say IE is roughly equivalent to beta times IB. When you put this value in this equation, IE को आप replace करेंगे, this would be cancelled out and it would be equal to beta times this entire value, right? ओके, आप इसको मॉडिफाई इस तरह कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द सिनेरियो जहाँ पे आप आर एल को कंसिडर नहीं करें। जब आप आर एल को कंसिडर करेंगे और जो इंटरनल में आप R1 और R2 लगाते हैं फॉर योर बयासिंग, जो भी हमने निगलेक्ट किए हुए, ठीक है, दीज टू बयासिंग रेजिस्टेंसेज बोथ विल बी बिकॉज ये पॉइंट ए सी के लिए ग्राउंड कंसिडर होता है DC वोल्टेज, तो ये भी आपका ग्राउंड में जाएगा और ये भी आपका ग्राउंड में जाएगा, तो ये आपके दोनों पैरेलल आ जाएंगे विद योर this value, ठीक है। सो R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद दिस इंटायर वैल्यू, ठीक है, और इसमें आपका RE पैरेलल विद RL आता है अगर आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। यहाँ पे आई शुड बी राइटिंग दिस RE पैरेलल विद RL, ठीक है, तो ये आपका इंटायर इन Z in का फार्मूला बनता है, ठीक है, एंड वी वुड बी डूइंग दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दिस सिनेरियो, ठीक है। हाउ वी वुड बी डूइंग इट, हमने वही प्रोसीजर जो प्रीवियसली हमने लैब नंबर 11 में किया था, हमने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, यानी कि हमने इनपुट पे एक सोर्स कनेक्ट, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है 100 किलो ओम्स की, वी विल बी कंसिडरिंग इट आर एक्स, ठीक है, एंड इस वी आई वोल्टेज को वी सिग्नल वोल्टेज विच वुड बी वट एवर वी विल कीप इट, ठीक है, ठीक है। इन दोनों की डिफरेंस से इन इस फार्मूला के थ्रू वी वुड बी एस्टिमेटिंग अवर Z in. Let's take a value of 100k, ठीक है। दिस इज़ योर आर एक्स, ठीक है, फ्लिप आई शुडंट हैव फ्लिप्ड इट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा विद दिस एंड देन फॉरवर्ड, ठीक है, एंड आपने यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है विद द ग्राउंड, AC and voltage, right? अच्छा, सेम फॉर द सेम वोल्टेज ऑफ जो आपकी थी, what was it, 10 millivolts, आपने यहाँ पर you are receiving a voltage of 1.173, right? मीन्स कि आपका यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली आपका सिग्नल ड्रॉप डाउन हो गया, राइट? अच्छा, तो इन दोनों वोल्टेजेस को यूज़ करते हुए दिस इज़ योर V in, and V signal is the one which you are putting in with the help of your function generator 10 millivolts, right? तो इन दोनों को यूज़ करते हुए you are going to find out your measured Zn, and the calculated one will be all with the help of all these resistances value, right? इसी तरह Z out के लिए भी you are going to calculate with the help of this formula
ठीक है। यू नो कि यहाँ पे आपके आउटपुट साइड से इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग योर सर्किट यू वुड बी फेमिलियर कि आपका आउटपुट पे आएगा आर ई पैरेलल विद आर ई डैश प्लस आर जी is not present here, right? So ignore the rg, ठीक है। r1 parallel with r2 plus re dash and this re, right? ये आपकी टोटल वैल्यूज इसमें आएंगी, ठीक है। एंड आप इसको इस फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू कंसिडर द सर्किट विद लोड एंड विदाउट लोड, जिस तरह प्रीवियस लैब में हमने किया था, ठीक है। सो रिमूव दिस पार्ट, connect it directly, ठीक है। दिस इज़ द वन विद लोड, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लें या आप इसको यहाँ से मेजर कर लें, ठीक है। इट्स योर चॉइस। दिस वुड बी द वन विद लोड, राइट, एंड द वन विदाउट लोड वुड बी द वन जिसमें आपकी ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस वन, ठीक है। दिस वुड बी द वन विदाउट लोड क्योंकि आपने आरएल को डिस्कनेक्ट कर दिए, बट योर जो मल्टीमीटर है वो आपका वहीं पे कनेक्टेड है, दैट इज़ वन विदाउट लोड। ओके, इन दोनों को यूज़ करते हुए यू आर गोइंग टू पुट इन द वैल्यूज, द वी आउट इज़ द वन विदाउट लोड and with load -1 into your RL resistance which is 120 and finally आप इसको यूज़ करते हुए ZL या Z out कैलकुलेट करेंगे, that's Z out, right, not ZL, ठीक है। Z out इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड फाइनली इस दिस इज़ द वन विच इज़ मैयर्ड, राइट, और जो आपने अपने प्रोसीजर से या अपनी लैब इक्विपमेंट से परफॉर्म किया या फाइंड आउट किया, और दिस इज़ द वन कैलकुलेटेड जो आप अपने थ्योरी में पढ़ते आए हैं, ठीक है। एंड यू विल बी कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, राइट। इस लैब में एवरी थिंग विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड मैयर, ठीक है, वो सारा आपकी थ्योरेटिकल आपकी लैब में होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके मार्क्स होंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम में वो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर लैब एग्ज़ाम।